اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے؟ قصر خلافت میں یہی شور و غوغا بپا تھا کہ ارارا کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کروایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ارارا اس پر جان چھڑکتی تھی۔ رجب نے العازد سے کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ارارا کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرہ بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں تو یہ پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ ارارا نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈا اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہوزاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے، چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا پھر ہمیں پتھر بنا دے گا۔ لڑکی نے چلا کر کہا، میں مسلمان ہوں، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کروا دوں گی۔ ایک حبشی نے اسے کہا، تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں نہ رکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا چلے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ حبشی نے جواب دیا، کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے؟ اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا
उसकी गिरफ्त लड़की से ढीली हो गई। लड़की उसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर घसीटा और घोड़ों की ओट में हो गया। एक और तीर आया जो एक आदमी की गर्दन में लगा। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नशेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर नशेब में उतर गया। ये तीर उस शुतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टान पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया उसमें उसने कहा था कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूँ तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। उसका लिबास, उसकी शक्ल सूरत और उसकी डील डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं, इसे अगवा किया जा रहा है और उसे सूडान में ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। संतरी को ये मालूम था कि थोड़े दिनों के बाद सूडानी हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। फौज को सुल्तान अय्यूबी ने ये हुक्म दे रखा था कि औरत की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाजत थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रख कर फैसला कर लिया कि उस लड़की को बचाना है। उसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। उसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया, अपने ऊंट पर सवार हुआ, अपने साथियों को बताया कि बर्दा फरोशों का ताकुब करना है। वो तीनों ऊंटों को दौड़ाते दूसरी तरफ गए मगर उन्हें चट्टान का चक्कर काट कर जाना पड़ा। उसने ये भी न सोचा कि ऊंट घोड़े का ताकुब कर सकता है या नहीं। उन तीनों में से तीर कमान सिर्फ उसी संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियां और तलवारें थीं। वो उस जगह पहुंचे जहां लड़की और हबशियों को देखा गया था तो वहां 2 लाशों के सिवा कुछ भी नहीं था। सूडानी हबशी लड़की को भी ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। शुतर सवारों ने ताकुब में ऊंट दौड़ाए, लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे जो दूर हटते गए और खामोश हो गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊंटों पर लादी और वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बर्दा फरोशों की भी हो सकती थी। उन्हें उठा लाना जरूरी नहीं था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना जरूरी समझा गया था ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशानी और गुस्से के आलम में टहल रहा था। कमरे में उसके मुशीर और मोतमिद बैठे थे। ये उसके दोस्त भी थे। वो सर झुकाए बैठे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने आप को हमेशा काबू में रखता था। वो कभी जज्बाती नहीं हुआ था। गुस्सा पी जाया करता था और जहन को पूरी तरह काबू में रख कर सोचा और फैसला किया करता था। ऐसे हालात ने भी उसे आजमाया था जिनमें जाबिर जंगजू भी हथियार डाल दिया करते हैं। वो महासरों में भी लड़ा था और इस हाल में भी महासर में रहा था कि उसके सिपाहियों के हौसले टूट गए थे। कले में खाने पीने के लिए भी कुछ न रहा था और सिपाहियों के तरकश भी खाली हो गए थे। उसके सिपाही इस इंतजार में थे कि वो हथियार डालकर उन्हें इस अजियत और मौत से बचा लेगा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने सिर्फ अपना हौसला ही मजबूत न रखा बल्कि सिपाहियों में भी नई रूह फूंक दी। मगर उस रोज सुल्तान अय्यूबी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। चेहरे पर गुस्सा भी था, घबराहट भी। यही वजह थी कि सब खामोश बैठे थे। उसने कहा, आज पहली बार मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ गया है। उसके नायब सालार अल नासिर ने कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप खलीफा के इस पैगाम को नजरअंदाज कर दें? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इसी कोशिश में मसरूफ हूँ, लेकिन इल्जाम की नौयत देखो जो मुझ पर आयद किया गया है। मैंने उसके हरम की एक लड़की अगवा करवाई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। उसने मेरी तौहीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम बल्कि धमकी कासिद की जबानी भेजी है। वो मुझे बुला लेता, मेरे साथ बराह रास्त बात करता। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को ठंडा कीजिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सोच ये रहा हूँ, क्या वाकई हरम से की अगवा हुई है? ये झूठ मालूम होता है। उसे पता चल गया होगा कि मैंने खुतबे में से उसका नाम निकलवा दिया है। इसके जवाब में उसने मुझ पर ये इल्जाम लगाकर कि मैंने उसके हरम की एक लड़की अगवा कराई है, इंतकाम लेने की कोशिश की है। सुल्तान अय्यूबी ने ईसा अल हकारी फकीह से कहा, एक हुक्मनामा मिस्र की तमाम मस्जिदों के नाम जारी कर दो कि आइंदा किसी मस्जिद में खुतबे में खलीफा का जिक्र नहीं किया जाएगा। अल नासिर ने कहा, आप उसके यहाँ चले जाएं और उससे बात करें। उसे साफ अल्फाज में बता दें कि खलीफा कौम की इज्जत का निशान होता है, लेकिन उसका हुक्म नहीं चल सकता, खुसूसन इस सूरत हाल में जब हालात जंगी हैं।
और दुश्मन का खतरा बाहर से भी है और अंदर से भी मौजूद है। मैं तो यहाँ तक मशवरा दूंगा कि उसके मुहाफिज दस्ते की नफरी कम कर दें, सूडानी हबशियों की जगह मिस्री दस्ता रखें और उसके महल के अखराजात कम करें। मैं उसके नताइज से आगाह हूँ, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया है, खुदा जुल जलाल मुझे इस जिल्लत से भी बचा लेगा। दरबान अंदर आया, सब ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, सहरा के गश्ती दस्ते का कमांडर अपने 3 सिपाहियों के साथ आया है, वो 2 सूडानियों की लाशें लाए हैं। सब ने दरबान की मुदाखलत को अच्छी नजर से न देखा। उस वक्त सुल्तान अयूबी बड़े ही अहम और खुफिया इजलास में मसरूफ था, लेकिन सुल्तान ने दरबान से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सुल्तान अयूबी ने अपने दरबान से कह रखा था कि जब भी उसे कोई मिलने आए वो उसे इत्तला दे, और अगर रात उसे जगाने की जरूरत महसूस हो तो फौरन जगा ले। सुल्तान कोई बात और कोई मुलाकात इल्तवा में नहीं डाला करता था। ओहदेदार अंदर आ गया, उसका चेहरा गर्द से अटा हुआ और थका थका नजर आता था। सुल्तान अयूबी ने उसे बिठाया और दरबान से कहा कि उसके लिए पीने के लिए कुछ ले आओ। ओहदेदार ने सुल्तान को बताया कि उसके गश्ती संतरियों ने 4 सूडानी हबशियों से एक मगविया लड़की को छुड़ाने की कोशिश में 2 को तीरों से मार डाला है और वो लड़की को उठाकर भाग गए हैं। ओहदेदार ने बताया कि संतरियों के बयान के मुताबिक लड़की खाना बदोश या किसी आम घराने की नहीं थी, वो बहुत ही अमीर लगती थी और उसने कहा था कि वो खलीफा की मिल्कियत है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मालूम होता है खुदा जुल जलाल मेरी मदद को आ गया है। वो बाहर निकल गया। कमरे में बैठे हुए सब हाकिम उसके पीछे चले गए। बाहर जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश पेट के बल थी, उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था। दूसरी लाश की गर्दन में तीर पैवस्त था। पास 3 सिपाही खड़े थे। उन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालारे आला भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गए। सुल्तान अयूबी ने उनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनसे हाथ मिलाया और कहा, ये शिकार कहाँ से मार लाए हो मोमिनो? उस संतरी ने, जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था, सुल्तान अयूबी को सारा वाकया पूरी तफसील से सुना दिया। सुल्तान अयूबी ने अपने मुशीरों से कहा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की ही दाश्ता हो? अली बिन सुफियान ने कहा, मालूम यही होता है। इनके खंजर देखिए। उसने 2 खंजर सुल्तान अयूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाकया सुना रहा था, अली बिन सुफियान लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने सूडान का कबायली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर उनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते के खास साख्त के खंजर थे। उनके दस्तों पर कसर खिलाफत की मोहरें लगी हुई थी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर उन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए तो ये दोनों कसर खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, लाशें उठवाओ और खलीफा के पास ले चलो। अली बिन सुफियान ने कहा, पहले यकीन कर लिया जाए कि ये वाकई खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सुफियान के साथ कसर खिलाफत का एक कमांडर आ गया। उसे दोनों लाशें दिखाई गईं। उसने फौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं। गुज़श्ता 3 रोज से छुट्टी पर थे। इनकी छुट्टी 7 दिन रहती थी। सुल्तान अयूबी ने पूछा, कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? वो बोला, 2 और हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, क्या वो इनके साथ छुट्टी पर गए थे? कमांडर ने जवाब दिया, जी हाँ, इकट्ठे गए थे। फिर उसने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो खूंखारी में मशहूर हैं। इनमें फिरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी आ जाते हैं जिनका उस कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। उस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द, बल्कि काहिरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हों, होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फरोख्त हो जाती हैं। ये 4 सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज के बाद शुरू हो रहा है। अली बिन सुफियान ने पूछा, क्या उनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की उन्होंने अगवा की होगी?
कमांदार ने जवाब दिया, मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों में इस कबीले के लोग जान का खतरा मोल लेकर भी लड़कियां अगवा करने की कोशिश करते हैं, और ये खूंखार इतने हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाहकों में मिस्र के अमीर, वजीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आरजी कहबा खाने भी खुल जाते हैं जहां जुआ, शराब और औरत के शैदाई दौलत लुटाते हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरस्कार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान कर दिया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहां और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम उनका एक मजहबी पेशवा, जिसे हबशी खुदा भी कहते हैं, वो करता है। उसके साथ बहुत थोड़े से खास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये कबीला पागलों की तरह नाचता और शराब पीता है। खलीफा ने मुहाफिज दस्ते का नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफिज दस्ता धूप में खड़ा था। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। उस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमांदारों और ओहदेदारों को भी खाने की इजाजत दी गई थी, न पानी पीने की। रज्जब बार बार आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफिजों की मदद के बगैर अगवा नहीं की जा सकती थी। जिस किसी ने अगवा में मदद दी है वो सामने आ जाए, वरना तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दिया जाएगा। अगर लड़की खुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने जरूर देखी होती। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह हैं। खलीफा रज्जब को टिकने नहीं दे रहा था। उसने रज्जब से कहा था, मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगवा करवाया है। रज्जब ने ही अगवा का बहतान सुल्तान अय्यूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रज्जब सबूत कहाँ से लाता? उसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफिज दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। बड़े दरवाजे में सुल्तान अय्यूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। उनके पीछे सुल्तान अय्यूबी के हाकिम और मुशीर थे। उनमें अली बिन सुफियान भी था। रज्जब ने खलीफा को इत्तला भेज दी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अय्यूबी के उस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक सीधी दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। उन लाशों के साथ वो 3 शुतुर सवार थे जिन्होंने उन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अय्यूबी और उसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अय्यूबी ने इसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुककर उससे मुसाफा किया और उसका हाथ चूमा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूँ। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी और मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना जरूरी समझता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी फौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर भांप लिए। उस फातिमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से कराह रहा था। वो सुल्तान अय्यूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अय्यूबी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा अजीज समझता हूँ सलाहुद्दीन, अंदर आओ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी हैसियत अभी मुल्जिम की है। मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं इग़वा का मुल्जिम नहीं हूँ। खुदा जुलजलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी हैं। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसर खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूं अंदर नहीं जाऊंगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने लाशें उठवाकर उस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज से कहा, 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमांदार और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। उनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा कि ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और आए। इस तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें उनकी फलां साथियों की हैं।
खलीफा ने कहा, सलाहुद्दीन, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहाफिजों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया। सलाहुद्दीन ने उस गश्ती संतरी से जिसने उन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाकया खलीफा को सुना दिया। वो खत्म कर चुका तो सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई, वो सूडानी हबशियों के मेले में फरोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खिसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अय्यूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उस लड़की को जिंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाजिरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं दाश्ता थी, मेरे लिए जरा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फराइज सौंपे हैं। खलीफा ने कहा, मेरी परेशानी ये नहीं कि एक लड़की अगवा हो गई है, असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़कियां अगवा होने लगी तो मुल्क में कानून का क्या हशर होगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। आप ज्यादा परेशान ना हो, मेरा शोबा सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अय्यूबी को जरा परे ले गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अय्यूब यानी तुम्हारे वालिद का बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जर्रा भर एहतराम नहीं है। और मुझे आज बताया गया है कि जामे मस्जिद के खतीब अमीरुल आलिम ने ये गुस्ताखी की है कि खुतबे से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे रज्जब ने बताया है कि मैं उसे इस गुस्ताखी की सजा दे सकता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारी शह पर ऐसा नहीं किया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी शह पर नहीं, मेरे हुक्म पर उसने खलीफा का नाम खुतबे से हज़फ किया है। सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि हर उस खलीफा का नाम खुतबे से हटा दिया गया है जो आपके बाद आएगा और जो उसके बाद आएगा। खलीफा ने पूछा, क्या ये हुक्म फातिमी खिलाफत को कमजोर करने के लिए जारी किया गया है? मुझे शक है कि यहाँ अब्बासी खिलाफत लाई जा रही है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हुजूर बहुत बूढ़े हो गए हैं। कुरान ने शराब को इसीलिए हराम कहा है कि इससे दिमाग माऊफ हो जाता है। फिर सुल्तान ने जरा सोचकर कहा, मैंने फैसला किया है कि कल से आपके मुहाफिज दस्ते में रद्द-बदल होगा और रज्जब को मैं वापस लेकर आपको नया कमानदार दूंगा। खलीफा ने कहा, लेकिन मैं रज्जब को यहाँ रखना चाहता हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं हुजूर से दरखास्त करता हूँ कि फौजी मामलात में दखल देने की कोशिश न करें। फिर वो अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो 5 हबशी मुहाफिजों को साथ लिए आ रहा था। अली बिन सुफियान ने कहा, ये 5 उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इस दस्ते से मुखातिब होकर कहा कि इस कबीले के कोई आदमी यहाँ हों तो बाहर आ जाएं। ये 5 सफों से बाहर आ गए। इनके मुतालिक मुझे इनके कमानदार ने बताया है कि परसों से छुट्टी पर जा रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के अगवा में इनका हाथ हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रज्जब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमानदार आ रहा है, आप मेरे पास आ जाएं। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। रज्जब के चेहरे का रंग बदल गया।